for that, Meghna, in fact, Union Minister Nitin Gadkari is somebody who we all know, we've all seen. He's known for his, very frank speaking, and he's just come from Parliament where he's made a very big announcement about a huge development which could change India's roads, particularly the roads that are two-lane. They will be expanded. Mr. Gadkari, please take us through what you've announced in Parliament today to begin with. Actually, in our country, we have 146,000 kilometers as a national highway. Actually, the majority national highway is 4-lane. Now, we are also making express highway axis control. Lot of green express highway also is in the process. Today, we have taken a decision, we have declared in Parliament, that 2-lane express highway, where their PCUs, traffic density, is more than 10,000 PCUs, we will make them 4-lane. And we have declared that 25,000 kilometers, costing 10 lakh crore, we convert 2-lane road into 4-lane within 2 years. That's a big announcement. That's a big announcement. Round of applause. Thank you. And sir, what has actually spurred this? Was there specific demand from states? What was the idea? What is the thought process behind this? And how do you see this impacting on ground in terms of local connectivity and state-to-state connectivity? Actually, the most important thing is when the PCU is more than 10,000, we are making 4-lane. Then after 20,000 PCUs, we are making 6-lane. And after 30,000 PCUs, we are making 8-lane. Today the problem is that everywhere there is traffic jam and air pollution, and that is the reason we need more highways. And also we need to increase the width of the highway. So I'm just giving you the example from this hotel. If you can go to Gurgaon, so it's a very busy road. So we have already completed half of the project, Dwarka Express Highway. And also there is a tunnel now, which is going to T3 and UR2. From that peripheral road from Panipat it starts. So from Panipat to Delhi airport presently, the time is 3 hours. But now, after 2 months, it will be only half hour. Half an hour? Yes, from Panipat to Delhi airport. half hour you can go to airport. Big development. But sir, you mentioned Delhi, so I'm coming to Delhi. I'll come to the national, developments as well. Delhi is a city that saw a lot of development during Sheila Dikshit's regime. We've seen about 10 years of Arvind Kejriwal's government. As somebody who has been looking at infrastructure, especially road infrastructure, there are several projects, whether it is the Gurgaon Expressway, you mentioned Dwarka, there is of course the Meerut Expressway that the central government has urged. Do you feel the last 10 years, Delhi's development and part of the pollution problem has also been that the state government perhaps did not take things as seriously as the previous regimes did when it comes to building infrastructure? I don't want to, and actually it's not politically, but factually in the world, with the maximum pollution, the city who are suffering this problem, Delhi is one of the important cities. So we have already taken a program of making road expansion of 1 lakh crore, out of which 65,000 crore projects are already started, 32,000 crore projects have already completed, and now we have just find out that how we can resolve the problem of traffic jam and air pollution in Delhi. So now we are also making new program. Today the Member of Parliament from Delhi, Rambir Vidudi ji, he meet me and he demanding to organize a meeting for resolving the problem of air pollution and traffic jam in Delhi. So I am calling all the MPs and the Chief Minister, and now also idea in his mind to also take some new NH, new roads, where we can reduce the traffic jam and air pollution problem in Delhi. But one thing I will tell you, the 40% of the air pollution in Delhi is because of transport sector, where we are responsible for that. And most important thing is in Punjab and Haryana, the burning of Parali, that is the one of the important reason for air pollution. Today, from last many days, continuously I am trying for that. Now we have 400 units who are in the process.
They are making bio-CNG from rice straw, popularly known as parali. And the byproduct is lignant. And now the Central Research Road Organization, with the help of Praj Industries, we have successfully implemented the project in Nagpur-Jabalpur Road by adding 35% lignant into petroleum bitumen, and it is proved to be 50% more superior as compared with the petroleum bitumen. So this, out of these 400 industries, 60 already started. And the most important thing is in Panipat, it is already the industry started from Indian Oil. They are making 1 lakh liter of ethanol from parali, rice straw, and 150 ton of bio-bitumen, and 78,000 ton per year the bio-aviation fuel, Hawaii Indhan. So my always mission is कि किसान केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, वो ऊर्जादाता बनेगा, ऊर्जादाता नहीं ईंधन दाता बनेगा, ईंधन दाता नहीं हाइड्रोजन दाता बनेगा, हाइड्रोजन दाता नहीं तो बिटुमिन दाता बनेगा, और बिटुमिन दाता ने हवाई ईंधन दाता बनेगा. तो 5 ही बातें लगभग प्रूव होकर अब पॉपुलर हो रही है. दैट इज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पोल्यूशन. वेरी इंटरेस्टिंग. एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग इन दिल्ली कि दिल्ली में 4 कचरे के माउंटेन है. एक गाजीपुर है. अभी हमने 80 लाख टन कचरा गाजीपुर का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे और UR2 में यूज किया है. और मैं कोशिश करूंगा कि दिल्ली की चारों भी टेकड़ियां जो है कचरे की, वो आने वाले 2-3 साल में हम खत्म कर देंगे और पूरा रोड के अंदर डाल देंगे. तो आप सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी नहीं, आप एनवायरमेंट की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं. नहीं, वी वांट डेवलपमेंट, एट द सेम टाइम वी हैव टू प्रोटेक्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट. और तीसरी बात, अभी मैं एक एक्ट तैयार कर रहा हूं कि हमारे जो हॉर्न होते हैं, देखो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन. तो साउंड पोल्यूशन में हॉर्न बजाते हैं, उसकी भी एक तकलीफ है. तो अभी हमने ये तय किया है कि वो जो आवाज आता है वो मिनिमम डेसिमल पर हम लोग हारमोनियम, वायलिन, बांसुरी, तबला, ऐसे छोटे छोटे आवाज इस पर हॉर्न को कन्वर्ट कर रहे हैं. क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट मेरे पास है, ताकि हम इससे भी दूर हो. और मैं जब वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो मैंने दिल्ली को 6,000 करोड़ रुपए दिए, और 6,000 करोड़ रुपए दिए, उसमें से एक जायका का भी प्रोजेक्ट है. बीच में वो सब प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं. तो मेरा ड्रीम था जब मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था कि यमुना से MPBS सी प्लेन उड़ेगा, 15 मिनट में आगरा ताजमहल के पीछे उतरेगा, 2 घंटा ताजमहल देखकर फिर वापस 15 मिनट में दिल्ली आएंगे. तो अभी उस पर दिल्ली की सरकार भी आई है, और ये 6,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है ये भी अब प्रोसेस में है. और चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1970 से ये पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, राजस्थान और पूरे देश में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब राज्यों में पानी के लिए झगड़े थे. तो 17 झगड़े मैंने मिटाए. तो मेरा फार्मूला ये था कि दोनों चीफ मिनिस्टर को बुलाता था और मैं कहता था जब तक झगड़ा नहीं निपटेगा, सोल्यूशन निकलेगा नहीं, तब तक दरवाजा नहीं खोलूंगा. तो 17 झगड़े निपट गए. उसमें से उत्तराखंड और हिमाचल में रेणुका बांध, केशव, ऐसे जो बड़े बड़े बांध है, उसमें से दिल्ली को पानी मिल रहा है. और 2070 तक अब दिल्ली में कोई पानी की समस्या नहीं रहेगी. और मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को कहा है कि 24/7 वाटर सप्लाई हमारे देश में एक ही शहर में है, जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नागपुर में है. तो मैंने कहा कि आप दिल्ली में आप पानी के लिए 24/7 योजना लाइए, ताकि दिल्ली वालों को 24 घंटे पानी मिलेगा. बिल्कुल, डेफिनेटली द नीड ऑफ द आवर. पानी को लेकर हमने पॉलिटिक्स भी देखी, लेकिन सर दिल्ली की क्योंकि आप बात कर रहे हैं, एज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, क्या आपको लगता है दिल्ली में जहां तक EVs की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेनिट्रेशंस इज बिलीव टू बी दिल्ली अलॉन्ग विद सम अदर स्टेट्स लाइक केरला एंड असम, बट इट्स स्टिल ओनली अबाउट 10-11%. क्या कुछ और ड्रास्टिक करने की जरूरत है शॉर्ट टर्म में, लाइक फॉर इंस्टेंस स्टॉप रजिस्टरिंग डीजल व्हीकल्स व्हिच आर मोर पोल्यूटिंग, और समथिंग ड्रास्टिक टू ब्रिंग डाउन द पोल्यूशन एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स टिल द पेनिट्रेशन ऑफ EVs हैपेंस? सर, इसमें बहुत कुछ हो सकता है. मैं आपको कहूंगा कि आप एक प्रोजेक्ट का अध्ययन करिए, क्योंकि मैं पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, BOT, हाइब्रिड एन्युटी, कैपिटल मार्केट से फंड खड़ा करके सब करना, ये सक्सेसफुली हमने किया है. दिल्ली में मथुरा में
एक मथुरा की 90 MLD स्लज थी, और मैं जब वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो हमने एक प्रोजेक्ट किया कि 40% फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड 60% फ्रॉम द इन्वेस्टर, और वो जो पानी शुद्ध होगा स्लज से वो हमने इंडियन ऑयल को, मथुरा रिफाइनरी को बेचा। तो मैंने उनके चेयरमैन को पूछा, आपको पानी कितना लगता है, कितना पैसा देते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम यूपी सरकार से पानी लेते हैं और उनको 25 करोड़ साल के देते हैं। मैंने बोला आप 20 करोड़ दीजिए। और हमने ऐसा प्रोजेक्ट डिजाइन किया कि जब वो टेंडर हुआ तो 40% भारत सरकार हमने दिए, 60% इन्वेस्टर ने लाए, और पहली बार ये लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में हमने वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने वो प्रोजेक्ट जीता, और अब 90 MLD स्लज तो शुद्ध हो रही है। इधर इंडियन ऑयल को 25 करोड़ के बजाय 20 करोड़ रुपए खर्चा करके पानी मिला, और मथुरा का इतना गंदा पानी शुद्ध हुआ। तो बहुत से जगह पर ये वाटर रिसाइकलिंग के लिए अगर प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे, तो मैंने अपने खुद कॉन्स्टिट्यूंसी में, नागपुर महानगर पालिका में, हम टॉयलेट का पानी बेचते हैं, सीवेज वाटर का। आप बिलीव नहीं करोगे, हम टॉयलेट का पानी बेचकर 300 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं। That's interesting. Very ये interesting. हर शहर में ये पानी को रिसाइकलिंग करके अगर इंडस्ट्री के यूज में आएगा तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की एक बहुत अच्छी पॉलिसी बनाने की कोशिश भी हो रही है। और अभी मैं बताता हूं कि जो हाइड्रोजन है ये भविष्य का फ्यूल है। तो ये जो कचरे को सेग्रीगेट करके ग्लास, मेटल, प्लास्टिक का रिसाइकलिंग होगा, और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो बायोडाइजेस्टर में डाल के उससे मीथेन निकलेगा, मीथेन से CO2 अलग करके हाइड्रोजन निकलेगा। और मैं हाइड्रोजन की गाड़ी में भी आया हूं। मेरे पास जो हाइड्रोजन की गाड़ी है अभी आया, उसमें उसका नाम है मिराई। तो मिराई जापानी वर्ड है, मिराई मीन्स भविष्य, फ्यूचर। तो हाइड्रोजन ये भविष्य का फ्यूल है, और हाइड्रोजन अगर हमने सक्सेसफुली तैयार किया और सस्ता तैयार किया तो हम आज 22 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करने के लिए। आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, पर अगर वेस्ट टू वेल्थ यही काम अगर हमने किया, कचरे से हाइड्रोजन बनाया, बायोमास से बनाया, तो हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। और हाइड्रोजन ये फ्यूल पर बहुत बहुत ये अच्छा काम हुआ है। अभी 20-25 दिन पहले इसी होटल में हमारे डिपार्टमेंट के एक प्रोजेक्ट में टाटा के 2 ट्रक मैंने यहाँ लॉन्च किए। एक ट्रक जो था वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर था, और दूसरा ट्रक जो था IC इंजन पर, उसमें हाइड्रोजन डाल के चलने वाला था। अब जो हाइड्रोजन तैयार हो रहा है वो 4 प्रकार का है। कोयले से बनता है ब्लैक हाइड्रोजन, पानी से बनता है वो ग्रीन, पानी और बायोमास से, और जो पेट्रोलियम का बड़ा प्रोडक्ट है वो ब्राउन हाइड्रोजन। अभी हम लोग जो हाइड्रोजन की कीमत है इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस में 50 यूनिट पावर लगती है 1 kg हाइड्रोजन के लिए, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। अभी हमारे यहाँ बहुत रिसर्च हुआ और अनेक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन की कीमत $1 पर kg आनी चाहिए। तो ये अगर आएगी तो इलेक्ट्रिक कार से भी सस्ता हाइड्रोजन होगा। कब तक होगा सर ये? आम आदमी के पास हाइड्रोजन गाड़ी कब तक आ सकती है? इसमें गाड़ी तो अभी है। मैं गाड़ी में इसीलिए घूमता हूँ क्योंकि लोग विश्वास ही नहीं रखते हैं कि पानी पे हाइड्रोजन निकलेगा और गाड़ी चलेगी। तो एक ने, मेरी पत्नी ने एक बार मुझे कहा कि आप जो बोल रहे हैं उसमें मेरा ही विश्वास नहीं तो लोगों का कैसे बैठेगा। तब मैंने कहा कि ये गाड़ी लेके मैं घूमता हूँ, ये देखो हाइड्रोजन की गाड़ी, ये देखो फ्लेक्स इंजन 100% इथेनॉल की गाड़ी है। तो मैं आज यही होटल में एक बड़े चैनल के कार्यक्रम में एक पत्रकार ने मुझे प्रश्न पूछा था। ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमने शुरुआत की थी, तो उसने पूछा था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब किसी की गाड़ी बंद पड़ी है? इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस पूरी दिल्ली में हो रही। और अब तो मैं धौलाकुआ से मानेसर एक नई टेक्नोलॉजी लाकर हवा में चलने वाली डबल डेकर बस चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग। और अभी अपने नागपुर, ये कब तक इम्प्लीमेंट करने का प्लान है आपका? ये कब तक इम्प्लीमेंटेशन का प्लान है आपका? अभी प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, और अभी उसके लिए इंटरेस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट हुआ, पार्टी आई है, टेक्नोलॉजी सिलेक्ट की है हमने। और नागपुर में हम लोग फ्लैश चार्जिंग बस चला रहे हैं। ये जो डीजल बस है इसके बजाय 135 सीटर बस होगी, बस स्टॉप पर आएगी और आधा मिनट में जो चार्जर नीचे आएगा फ्लैश चार्जिंग होगा, फिर बस 40 किलोमीटर चलेगी।
और उसमें 135 सीट होगी, एयर कंडीशन बस होगी, एग्जीक्यूटिव क्लास की चेयर होगी, हवाई जहाज में जैसे एयर होस्टेस होते बस होस्टेस होगी, और बस का किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। कम होगा डीजल बस से। मैं दिल्ली से जयपुर ये बस को शुरू करने का भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, ताकि 1.25 घंटे में आप अपने लैपटॉप पर काम करते हुए शांति से आप डायरेक्ट उस बस में बैठकर 2.25 घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे। It sounds like some future science fiction movie that you're describing, but आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी रियलिटी होगी। देखिए, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर केवल विजन होकर नहीं चलेगा। वी नीड टू हैव ए सक्सेसफुल प्लान by which we can implement the futuristic vision for the people. That is very important. भगवान की कृपा से तो आज तक मैं जो बोलता हूँ 100% हुआ है। कैसे मैनेज करते हैं सर आप? जो बोलते हैं इम्प्लीमेंट कैसे कर पाते हैं? कई बार हम देखते हैं कुछ नेता चीजें प्रॉमिस करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। आप क्या करते हैं ऐसे जो इम्प्लीमेंटेशन भी कर पाते हैं? गलतियां होती है, जब कोई काम करता है तो गलतियां होती है, पर इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड माफ करना चाहिए, और मिस्टेक्स आर मैलाफाइड फिर उसको सैक करना चाहिए। जी। अभी मैं बहुत कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड कर रहा हूँ, किसी को जेल में डालने तक भी मेरा अभी कार्रवाई कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट। जो फ्रॉड करेगा, क्वालिटी खराब करेगा, उसके साथ कुछ नहीं। तो बाय प्रोसेस आदमी सीखते जाता है। तो मुझे लगता है जो लोग सर आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते, बहुत चैलेंजेस अभी भी हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस रेंज की इशू है, चार्जिंग पॉइंट्स की इश्यूज हैं, बड़े शहरों में भी, दिल्ली जैसे शहरों में भी, और एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो लोग परचेस करते हैं वो कहते हैं कि इंटरसिटी ट्रैवल में दिक्कत होती है। स्टेट हाईवेज पे इसकी चार्जिंग की फैसिलिटीज और इन सब चीजों को कितना आप आगे बढ़ावा देने की सोच है, और कब तक ये चीजें इंप्लीमेंट होंगी? देखिए, मैं आपको नम्रतापूर्वक बता रहा हूँ, आप जितना कुछ कह रहे हो वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल 100 हाईवेज पे है। मैं आप लोगों से पूछता हूं ना, आपको बता दो क्या है। बजाज और टीवीएस ने अध्ययन किया कि एक व्यक्ति एक दिन में कितने किलोमीटर स्कूटर चलाता है, तो बजाज और टीवीएस में 24 और 26 किलोमीटर आया। अब जो स्कूटर आती है वो 120 किलोमीटर के लिए चार्ज होती है, रात को घर में जाते हैं, चार्ज करते हैं, दूसरे दिन फिर चार्ज हो जाती है। गाड़ियों के बारे में भी 450 किलोमीटर तक रेंज गई है, अब 350 की भी है। अनेक गाड़ी, अब वेटिंग लिस्ट है, 36% राइज है इलेक्ट्रिक कार में और इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और बसेस तो मिलती नहीं, वेटिंग लिस्ट है। तो वो भी अपने घर में लाकर उसको रात को चार्ज कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है कि दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है या दिल्ली से मुंबई जाना है तो चार्जिंग सिस्टम के लिए प्रॉब्लम है। तो पहले जैसे मोबाइल आया था तो हर कंपनी का चार्जर अलग था, अभी वो तकलीफ थी, तो अभी हमने ऐसा किया कि अब चार्जिंग सिस्टम ऐसी बनाई कि गाड़ी कोई भी कंपनी की हो आप चार्ज कर पाएंगे। तो अब हमारे एनएचआई में ही 670 रोड साइड एमिनिटीज बन रही है, उनमें अनेक जगह पर चार्जिंग स्टेशन बन गया है। तो अब बस, ट्रक, अभी इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहा है, और इसलिए आने वाले समय में चार्जिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और अपने शहर में जो गाड़ियां चलाते वो तो रात को घर में चार्ज हो जाती, उनका प्रॉब्लम नहीं है। जो लॉन्ग, अभी दिल्ली से आपको 1000 किलोमीटर दूर जाना है तो वही प्रॉब्लम है, तो वो भी अब लगभग अनेक जगह पर चार्जिंग सिस्टम बन गई है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत। सर, एक आखिरी सवाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, एक बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी, एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी बैठी थी, इसको लेकर कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगी खबर, चाइना में देयर इज अ कंपनी जो कह रही है कि 5 मिनट में काफी हद तक चार्ज कर सकती है बैटरी। व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप ऑफ दिस टेक्नोलॉजी? कौन सी टेक्नोलॉजी को इंडिया अडॉप्ट करेगी जहां तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात अगर हम करें? देखिए, इसमें रोज चेंज हो रहा है। अभी बैटरी केमिस्ट्री में लिथियम आयन बैटरी, सोडियम आयन बैटरी, एल्यूमिनियम आयन बैटरी, जिंक आयन बैटरी केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही है। फिर लोग पूछते थे कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी खत्म हो गई तो कितना पोल्यूशन होगा, इस पे चर्चा हुई। और हमारे लोगों ने शुरू किया है कि सोलर पावर जब तैयार होती है तो ये जो 3 साल 4 साल आपने यूज की हुई लिथियम आयन बैटरी है, इसमें हम पावर स्टोरेज कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो उसका आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट ये कि हमारे देश में अभी जम्मू में जो लिथियम आयन का स्टॉक मिला है वो वर्ल्ड का 6% स्टॉक है, उससे 60 करोड़ व्हीकल हम इलेक्ट्रिक के बना सकते हैं, और ये बनेगा तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम एक्सपोर्ट करने में आगे जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, मैं ये मिनिस्ट्री भी, हम कानून बनाने का अधिकार और बाकी हमारे पास है मेरे मिनिस्ट्री में,
मैं जब मंत्री बना तो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का साइज 14 लाख करोड़ था। अभी हम 7वें नंबर पे थे। अभी 4 महीने पहले हमने जापान को पीछे डाला है। अब वर्ल्ड में हमारा नंबर तीसरा है और जापान चौथे नंबर पे गया है। हमारा साइज है 22 लाख करोड़। चाइना का सेकंड नंबर साइज है 47 लाख करोड़ और यूएसए फर्स्ट नंबर पर 79 लाख करोड़। और हम जिस प्रकार से हमारे टू व्हीलर जितने हैं, ये बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट रहा है। अब आने वाले समय में हम इलेक्ट्रिक, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल के मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बने हुए हैं। यही इंडस्ट्री है कि जो सबसे ज्यादा जीएसटी के रूप में टैक्स रेवेन्यू भारत सरकार और महाराष्ट्र अपना राज्य सरकार को देती है। और यही इंडस्ट्री है कि जिसने 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं और आत्मनिर्भर भारत बनाने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और मेरा विश्वास है, ये मेरा डिक्लेरेशन नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, ये हमने टारगेट निश्चित किया है कि 5 साल के अंदर हम वर्ल्ड में पहले नंबर पर जाने की कोशिश करेंगे। और इतना पोटेंशियल हमारे पास है और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। और जो हमारे कॉम्पिटिटर थे उनके साथ अब दुनिया डील करना नहीं चाहती। सर, क्योंकि आपने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात कही, तो पिछले कुछ दिनों में वी हैव सीन व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप हैज सेड. He has said that India charges one of the highest tariffs in the world, and one sector that he has focused on or spoken about, at least US has, is automobiles, because they say that India has one of the highest tariffs in the world. यदि आने वाले दिनों में कुछ एरियाज में हमने देखे हैं जहां पे हमने कुछ कंसेशंस भी दिए हैं यूएस को, क्या ये टैरिफ्स हट सकते हैं? और अगर हटते हैं, विल दे हर्ट आवर इंडस्ट्री? बिकॉज देयर इज अ चार्ज दैट वी हैव बीन वेरी प्रोटेक्शनिस्ट अबाउट आवर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स. इज दैट चार्ज करेक्ट और इज इट फॉल्स? सर, ये अभी जैसे लिथियम आयन बैटरी है, टाटा है, हुंडई है, टोयोटा है, सुजुकी है, करीब 7-8 कंपनियां अब उसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं. सेमीकंडक्टर जो इसका बिल्कुल आत्मा है, अब बड़े प्रमाण पर सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई है कि इसमें बड़े प्रमाण पर काम हो रहा है. मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई समस्या है. और ये हायर टैरिफ वगैरह की बात करते हैं, देखो राइस कितने 30%, 40%, हम तो लगातार बढ़ ही रहे. अभी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बन रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रक बन रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस तो वेटिंग लिस्ट है, मिलती नहीं है. तो मुझे लगता है कि इसमें स्काई इज द लिमिट. और हम लोग धीरे धीरे जो क्वालिटी बना रहे हैं, जो डिजाइनिंग हमने किया, अभी हमारे इंडियन कंपनी ने, आपने देखा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, ये जो फॉरेन ब्रांड्स है उनके तो अच्छे डिजाइन है, पर हमारे टाटा और महिंद्रा ने भी सुंदर गाड़ियां बनाई है. और हमारी ये छोटे छोटे कानपुर, लखनऊ जैसे शहरों में जो स्टार्टअप थे, उन्होंने वो होशियार है कि 120 किलोमीटर की स्कूटर बड़े कंपनी ने बनाया, उनने 60 किलोमीटर की बनाई. जो बैटरी का कॉस्ट कम हो गया, वो 60 और 70 हजार में अब वो स्कूटर बेच रहे हैं. तो छोटे छोटे लोग वो स्कूटर ले रहे हैं. इलेक्ट्रिक साइकिल भी आ गई है. तो मुझे नहीं लगता कि इतना पोटेंशियल है. और सरकार ने ये जो विशेष सेमीकंडक्टर है, लिथियम आयन बैटरी है, जो क्रूशियल पार्ट्स है, इसके लिए काफी कंसेशंस दिए हैं. और ये जो स्क्रैपिंग इंडस्ट्री है हमारी, जो हमने शुरू की है, उसमें 15 साल के ऊपर की गाड़ियों का स्क्रैपिंग हो रहा है, जिसके कारण ये एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, रबर, प्लास्टिक सब रिसाइकलिंग होगा. और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट की कॉस्ट 30% कम होगी और विल बी मोर कॉम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड मार्केट. दूसरी बात, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो हमारे देश में 14 से 16% है, चाइना में 8% है, यूरोपियन और अमेरिका में वो 12% है. मैं आपको बताता हूं कि निश्चित रूप से 2 साल के अंदर हमने ऐसे रोड बनाए हैं और फ्यूल में इतनी अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल में संशोधन किया है कि 2 साल के अंदर हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% होगी और हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा. जी सर, एक आखिरी सवाल. गृह मंत्री जी ने अनाउंस की है सहकार टैक्सी, जो ओला और उबर के लाइंस पे होगी. और ये देखा गया है कि कंपटीशन की जो बॉडीज है, सीपीए वगैरह, उन्होंने कहा है कि देयर इज सॉर्ट ऑफ नॉन ट्रांसपेरेंट मॉडल्स ऑफ प्राइसिंग, जो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन हो, उन सब में अलग अलग प्राइसिंग के मॉडल्स आए हैं. क्या आप मानते हैं कि इस तरह के नए मॉडल्स कंज्यूमर्स को और प्रोटेक्ट करेंगे जहां तक प्राइसिंग की बात? 2 चीजें होती है. देखो, आप जब एयरलाइंस में 5-5, 6-6 कंपनियां थी, तो दिल्ली से मुंबई का टिकट 5,000 में मिलता था. जैसे कंपनियां बंद हो गई तो टिकट रेट बढ़ गए. अब जैसे जितनी ज्यादा कंपटीशन होगी, उतनी अच्छी क्वालिटी, उतना डिजाइनिंग अच्छा मिलेगा और प्राइस सस्ती होगी. तो ये अनेक प्रयोग है.
और ये प्रयोग होने के कारण आखिर कंज्यूमर का फायदा ही होगा। अभी हमने भारत रेटिंग, भारत एनकैप करके लाया है, जिसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सब सुधार किए वर्ल्ड स्टैंडर्ड के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम लाई है और मुझे लगता है कि क्वालिटी में अब हम बेस्ट है। अभी हमारे भारत एनकैप में गाड़ियों का टेस्टिंग करने के लिए इंडियन मॉडल्स नहीं, फॉरेन के मॉडल्स हमारे यहाँ टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जितने ये अलग अलग नई नई बातें आएगी, उसमें कंपटीशन होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, कॉस्ट रिजनेबल रहेगी और लोगों का, कंज्यूमर का फायदा होगा। जी। तो ओवरऑल ये प्रयोग करने में कोई अड़चन नहीं। जी, गडकरी जी, एक आखिरी सवाल। मैं जानता हूं आपने कहा है कि आप पॉलिटिकल सवालों का जवाब नहीं देंगे, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट घटनाएं हुई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। 100 साल बाद हमने राइट्स देखे वहां पे, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर अभी शांत है स्थिति है। और मैं ये मानता हूं कि हमारे देश में हमने सबने मिलकर, हम जो आत्मनिर्भर भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और ये देश को आगे ले जाना चाहते हैं, उसमें गरीब गरीब होता है, कोई जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर नहीं होता। जो गैस का सिलेंडर हिंदू को जिस भाव में मिलता है वही मुसलमान को मिलता है। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी हमारी मूलभूत समस्या है। तो हम पूरे समाज को इस समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए, रोजगार की निर्मित करने वाली अर्थव्यवस्था लाए और सब लोग एजुकेशन का उपयोग करके, स्किल का उपयोग करके हम देश को भी आगे ले जाए और अपना भी भला करें। तो बड़े प्रमाण पर चल रहा है। अब कभी कभी कोई रिस्पॉन्सिबल लोग थोड़ा बहुत गड़बड़ियां करते रहती है, पर दैट इज नॉट ए रिएक्शन ऑफ कंप्लीट सोसाइटी, उनके समाज की रिएक्शन नहीं है। अब तो ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, हो गई दुर्भाग्यपूर्ण, पर अब सभी तरफ शांति है और सद्भाव का वातावरण है। गडकरी जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड Thank you very much. योर विजन एंड फ्यूचर प्लान्स फॉर इंडिया व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपोर्ट। थैंक यू सो मच, सर।